ایک دفعہ کا ذکر ہے، علی بابا نام کا ایک لکڑہارا ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غریبی کی زندگی گزار رہا تھا۔ علی بابا اپنے گدھے کو لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا اور انہی لکڑیوں کو بیچ کر اپنا گھر چلایا کرتا تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل جا رہا تھا کہ اسے بہت سارے گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ پریشان سا ہوا۔ اتنے سارے گھوڑے، شاید یہ چور ہیں، مجھے چھپ جانا چاہیے۔ اپنے گدھے کو جھاڑیوں میں چھپا کر وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہ سارے لوگ اسی درخت کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ علی بابا ان لوگوں کو گننے لگا۔ وہ 40 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے گھوڑے پر سے بڑے بڑے صندوق اتارنا شروع کیے۔ اب علی بابا کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ لوگ واقعی میں چور تھے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو دیکھنے اور وضاحت سے ان لوگوں کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک بڑے سے پتھر کی جانب بڑھا اور زور سے چلایا، کھل جا سم سم۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ علی بابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سم سم کا لفظ سنتے ہی پتھر نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک گرجدار آواز کے ساتھ وہ پتھر ایک طرف ہو گیا۔ پتھر کے ایک طرف ہوتے ہی وہاں پر ایک راستہ دکھائی دیا جو ایک غار کی طرف جا رہا تھا۔ تمام چور اپنے ساتھ لائے ہوئے صندوق کو اٹھا کر ایک ایک کر کے اس غار کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک ایک کر کے تمام چور اندر داخل ہو گئے۔ آخری چور کے اندر جاتے ہی وہ پتھر پھر سے اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اب وہ تمام چور غار کے اندر تھے، لیکن علی بابا اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ وہ اب درخت سے اترنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے پھر سے ہلا اور تمام چور ایک ایک کر کے باہر آنا شروع ہوئے۔ جب تمام چور باہر آ گئے تب سردار نے پھر سے آواز لگائی، بند ہو جا سم سم۔ ایک گرجدار آواز کے ساتھ پتھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اب وہ جگہ ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ درخت کے پاس آئے اور ایک ایک کر کے تمام چور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا خاموشی اور خوف سے ان سب کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ لوگ کافی آگے چلے گئے تب علی بابا خاموشی سے درخت سے اترا اور اس پتھر کی جانب بڑھا۔ اسے اس سردار کے الفاظ یاد تھے۔ وہ زور سے چلایا، کھل جا سم سم، اور پتھر گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ راستہ نمودار ہو چکا تھا۔ علی بابا غار کے اندر چلا گیا۔ اندر جو تھا اسے دیکھ کر علی بابا حیران رہ گیا۔ سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات، موتی چاروں طرف بکھرے تھے۔ علی بابا کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تاہم کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد اس نے کچھ سوچا اور کونے میں پڑے ہوئے کچھ تھیلے اٹھائے اور ان تھیلوں میں وہاں پڑے ہوئے سکے اور ہیرے جواہرات بھرنا شروع کیے۔ 2-3 تھیلے بھرنے کے بعد وہ ان تھیلوں کو اٹھا کر باہر آیا اور پھر سے چلایا، بند ہو جا سم سم۔ ایک گرجدار آواز کے ساتھ وہ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ اس نے ان تھیلوں کو کندھے پر رکھا اور گدھے پر سوار ہو کر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ تھیلے اتار کر ایک طرف رکھے۔ علی بابا کی بیوی نے جب تھیلے دیکھے تو وہ ان تھیلوں کی طرف بڑھی اور ان تھیلوں کو کھول کر دیکھا۔ وہ تھیلے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ علی بابا کی بیوی شدید حیران رہ گئی۔ اتنا سارا سونا، ہیرے، جواہرات، یہ سب کچھ کہاں سے لائے ہو آپ؟ بتاتا ہوں، 1 منٹ رکو ذرا۔ علی بابا نے تھیلوں کو ایک جانب رکھا اور اپنی بیوی کو پورا قصہ کہہ سنایا۔ اوہو، اب ہمیں جلد سے جلد اس سونے کو چھپا دینا چاہیے۔ ہاں، میں ایسا کرتا ہوں، اس طرف گڑھا کھودتا ہوں، تم جلدی سے یہ سارے سکے کسی برتن سے ناپ لو، پھر ہم اسے دوبارہ تھیلوں میں ڈال کر اس گڑھے میں چھپا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ گڑھا کھودیں، میں جب تک بھائی قاسم سے ایک برتن لے آتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ہم ان سکوں کو ناپ سکیں۔ یہ کہہ کر علی بابا کی بیوی علی بابا کے بھائی قاسم کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ قاسم علی بابا کے برعکس کافی امیر تھا، لیکن وہ علی بابا کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔
बल्कि इन लोगों से ज्यादा मेल जोल भी पसंद नहीं करता था। ठीक है, बर्तन ले आओ, लेकिन खबरदार किसी को भी इन सिक्कों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बीवी इस बात पर गर्दन हिलाती हुई बाहर चली गई। अली बाबा की बीवी ने जब कासिम से उसका नापने वाला बर्तन मांगा तो कासिम को थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो जानता था कि अली बाबा के घर में कभी भी इतना राशन या कोई चीज ऐसी नहीं होती थी जिसे नापने के लिए उन्हें किसी बर्तन की जरूरत पड़े। लेकिन तुम्हें इस बर्तन की क्या जरूरत पड़ गई? अली बाबा की बीवी इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो इधर उधर की बात करने लगी, जिससे कासिम का शक मजीद बढ़ गया। फिर वो बोला, अच्छा तुम रुको जरा, मैं बर्तन लेकर आता हूँ। ताहम बर्तन देने से पहले उसने बर्तन के नीचे शहद लगा दिया और वो बर्तन लाकर अली बाबा की बीवी को दे दिया। अली बाबा की बीवी वो बर्तन लेकर घर पहुंची तो अली बाबा कढ़ा तैयार कर चुका था। उन दोनों ने तेजी से उन सिक्कों को नापा और दोबारा से थैलों में भरकर उस गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे को अच्छी तरह से बंद कर दिया। ये काम करने के बाद अली बाबा की बीवी वो बर्तन लेकर कासिम के घर गई और उसे वो बर्तन लौटा दिया, लेकिन वो ये ना देख सकी कि उस बर्तन के नीचे एक सोने का सिक्का चिपका रह गया है और ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। अली बाबा की बीवी के वापस जाते ही कासिम ने तेजी से अपना बर्तन पलट कर देखा और उस पर सोने का सिक्का चिपका देखकर वो हैरान रह गया। हैरत और परेशानी से वो पूरी रात जागता रहा। सोने का सिक्का इसे कहाँ से मिला होगा? और इतने सिक्के कि उन्हें नापने के लिए उसे बर्तन की भी जरूरत पड़ गई। सुबह होते ही कासिम की बर्दाश्त खत्म हो गई। वो बर्तन लेकर सीधा अली बाबा के घर जा पहुंचा और उसे बर्तन के नीचे चिपका हुआ सोने का सिक्का दिखाया और बोला, मैं जानता हूँ तुम सोने के सिक्के खरीद नहीं सकते। अब मुझे सच सच बताओ, ये सोने के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? अली बाबा जान चुका था कि अब वो इस बात को नहीं छुपा सकता। उसने पूरी बात अपने भाई को बताई। इस कहानी को सुनते ही कासिम की आंखों में चमक आ गई। उसने अली बाबा को मजबूर किया कि वो उसे उस गार के पास लेकर जाए, वरना वो सबको ये बता देगा कि किस तरह इसने वो सिक्के चोरी किए और इस तरह उन चोरों को भी पता चल जाएगा कि अली बाबा ने उसके गार से सिक्के चुराए हैं। मजबूरन अली बाबा को कासिम को वो जगह दिखानी पड़ी। वो उसे साथ लेकर गया और दूर से उसे वो गार दिखाया और उसे ये भी बताया कि वो पत्थर किस तरह से वहाँ से हटता है। देखो, मैं तुम्हें ये जगह दिखा चुका हूँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर वापस आ जाएं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। घर पहुँचने के बाद कासिम से रुका ही नहीं गया। वो उल्टे कदमों 2 घोड़े लेकर उस गार के पास दोबारा जा पहुँचा। उसने अली बाबा के बताए हुए अल्फाज दोहराए, खुल जा सिम सिम। और पत्थर एक गरजदार आवाज के साथ एक तरफ हो गया। गार की तरफ जाने वाला रास्ता खुल चुका था। कासिम ने अपने घोड़ों को करीबी दरख्त से बांधा और गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतना सारा सोना एक जगह नहीं देखा था। वो तेजी से अपने साथ लाए हुए थैलों में वो जेवरात, सोने और सिक्के वगैरह जमा करने लगा। बढ़ते बढ़ते रात हो गई, उसे वक्त का एहसास ही नहीं हो पाया। आखिरकार उसने वापसी का सोचा। उसने इन थैलों को उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा, लेकिन रास्ता बंद था। उसने रास्ता खोलने के लिए अल्फाज बोलने चाहे, लेकिन वो अल्फाज भूल चुका था। उसने तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उसे वो अल्फाज याद ही नहीं आ रहे थे। वो काफी देर तक कोशिश करता रहा, उल्टे सीधे अल्फाज बोलता रहा, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुल जा टिम टिम, खुल जा लम लम, खुल जा नम नम, खुल जा टम टम। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसी असना में चोर और उसके 40 साथी बाहर आ चुके थे। गार के करीब 2 घोड़े बंधे देखकर चोर परेशान हो गए और उन सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। सरदार जोर से चिल्लाया, खुल जा सिम सिम, और दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। तमाम चोर तेजी से गार के अंदर दाखिल हुए और वहाँ कासिम को बंधे हुए थैलों के साथ पाया।
मामला एक ही मिनट में समझ आ गया। एक चोर आगे बढ़ा और एक ही बार में कासिम का सर धड़ से अलग कर दिया। ओह, तो ये हमारे गार में चोरी करने आया था। इसे अच्छी सजा मिली है। अब इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रात होने के बाद भी जब कासिम अपने घर नहीं पहुंचा, तो कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और उसे सारी बात बताई कि किस तरह कासिम शाम से गायब है। अली बाबा को समझ आ गई कि यकीनन कासिम उसी गार की तरफ गया होगा। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से गार की जानिब बढ़ गया। वहाँ उसने कासिम के घोड़े बंधे हुए देखे और एक लम्हे में उसे सारी बात समझ आ गई। वो अपने घर वापस पहुंचा और उसने कासिम की बीवी को सारी बात बता दी और उसे सख्ती से कहा, मैं जानता हूँ कासिम अब इस दुनिया में नहीं है और ये गम आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी मौत का राज छुपाना बहुत जरूरी है। अगर उन डाकुओं को पता चल गया कि वो मेरा भाई और आपका शौहर था, तो यकीनन वो हमें भी मार डालेंगे। आप हमारे साथ रह सकती हैं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। कासिम की बीवी ने रोते हुए वादा कर लिया और उन लोगों के साथ रहने लगी। कासिम की बीवी के साथ उसकी एक बहुत ही पुरानी मुलाजिमा मर्जीना भी उनके साथ आई। वो बहुत ज्यादा वफादार और मुखलिस थी। उसने जल्द ही अली बाबा के घर का तमाम काम संभाल लिया। देखते ही देखते अली बाबा के दिन बदल गए। वो अक्सर जाता और उस गार से अपनी मर्जी के हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के निकाल कर ले आता, लेकिन इतनी तेजी से चीजें गायब होने की वजह से सरदार अब शक में पड़ चुका था। उसने एक चोर से कहा, यकीनन उस रोज कत्ल होने वाले चोर का कोई साथी जरूर है जिसे इस गार का रास्ता और राज मालूम है। इसी वजह से हमारा सोना दिन ब दिन चोरी हो रहा है। तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। जाओ और जाकर करीबी बस्ती में देखो कौन है जो नया नया अमीर हुआ है। चोर करीबी बस्ती के बाजार जा पहुंचा और उसे थोड़ी ही देर में अली बाबा दिखाई दिया जो बेतहाशा पैसे खर्च कर रहा था। उसने भांप लिया कि हो न हो ये वही शख्स है जो गार से चोरी कर रहा है। उसने अली बाबा का पीछा किया। जैसे ही अली बाबा अपने घर पहुंचा, चोर वहीं रुककर उसके अंदर जाने का इंतजार करने लगा। अली बाबा ने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया तो चोर तेजी से उसके घर के करीब पहुंचा और उसके दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बना दिया। जब शाम हुई तो अली बाबा की मुलाजिमा मर्जीना घर का सामान लेकर वापस लौटी। उसने दरवाजे पर जब क्रॉस का निशान लगा देखा तो वो परेशान हो गई। मर्जीना बहुत समझदार थी। वो इस निशान को देखकर समझ गई कि यकीनन कोई मुश्किल आने वाली है। उसने जल्दी से एक कलर लिया और उस जगह मौजूद सब लोगों के घरों पर वैसा ही निशान लगा दिया। रात होते ही सरदार अपने साथ 40 चोरों को लेकर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए जा पहुंचा, लेकिन वहाँ पर सब दरवाजों पर एक जैसा निशान था। सरदार को चोर पर बहुत गुस्सा आया। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते तुम लोग। अब मैं खुद उसे ढूंढूंगा। इसके बाद अगले रोज सरदार खुद बाजार जा पहुंचा और अली बाबा को तलाश करने लगा। जल्द ही उसकी शातिर नजरों ने अली बाबा को पहचान लिया। उसने अली बाबा का पीछा किया और उसके घर जा पहुंचा। ताहम उसने दरवाजे पर कोई भी निशान लगाने से गुरेज किया। रात होते ही सरदार ने अपना हुलिया तब्दील किया और तमाम चोरों को तेल के खाली बैरल में डाला और उन्हें एक गाड़ी में रखा। फिर अली बाबा के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अली बाबा खुद बाहर आया। मैं एक ताजिर हूँ और मुसाफिर भी। आपके इलाके में तेल बेचने आया हूँ। मुझे पता चला है कि आप इस इलाके के एक मोअज़्ज़िज़ और अमीर इंसान हैं। मैंने सोचा आपसे पता कर लूं, क्या आप ये तेल खरीदना चाहेंगे? और अगर आप ना भी खरीदना चाहें, तो क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल रुक सकते हैं। तेल के बारे में हम कल देख के फैसला करेंगे। ये कहते हुए अली बाबा ने सरदार को अपने घर में बुला लिया। तेल के बैरल नौकरों की मदद से उसने अंदर रखवा दिए और सरदार के लिए खाना लगवाया। मर्जीना तेल चेक करने के लिए उन बैरल के करीब पहुंची। ताहम जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनी, बैरल में से एक चोर सरगोशी के से अंदाज में बोला, क्या मैं बाहर आ जाऊं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से भी बाहर आना मुनासिब नहीं। जब तक सरदार खुद हमें आवाज नहीं लगाते, हमें बाहर नहीं आना चाहिए
और खामोश, आप कोई बात नहीं करना। मर्जीना को एक ही लम्हे में तमाम सूरत हाल समझ आ गई कि इन बैरल में तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हुए हैं। वो तेजी से किचन में गई और एक बहुत बड़े से कढ़ाई में तेल गरम किया। फिर वो खौलता हुआ तेल लेकर इन बैरल के पास पहुंची जिनमें चोर छुपे हुए थे। उसने तेजी के साथ तमाम बैरल में खौलता हुआ तेल डालना शुरू किया। अंदर बैठे हुए चोर तेल से झुलसना शुरू हो गए, ताहम वो बाहर नहीं आ पाए और उसी तेल में झुलसकर उसी वक्त मर गए। आधी रात गुजरने के बाद सरदार को लगा कि सारे घर वाले सो चुके हैं। तब सरदार इन बैरल के करीब पहुंचा और आहिस्ता से आवाज लगाई, चलो अब जल्दी से तुम सब लोग बाहर निकल आओ। ताहम खाली बैरल में कोई हरकत ना हुई। उसने दोबारा आवाज लगाई। जब 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो सरदार बैरल के करीब गया और एक बैरल को खोल कर देखा। ताहम जो मंजर उसने देखा वो उसको डरा देने के लिए काफी था। एक एक करके वो तमाम बैरल चेक करता गया, लेकिन तमाम चोर जलकर मर चुके थे। सरदार बुरी तरह खौफजदा हो चुका था। वो तेजी से पलटा और भागते हुए घर से बाहर निकल गया और फिर कभी वहाँ लौट कर नहीं आया। अगली सुबह मर्जीना ने अली बाबा को पूरी बात बताई। अली बाबा ने जब जाकर तेल के बैरल देखे तो उसे मर्जीना जैसी मुलाजमा के होने पर रश्क आया। उस दिन के बाद से मर्जीना इस घर के फर्द की तरह रहने लगी और अली बाबा को अब इन चोरों से कोई खतरा नहीं था। ऐसी ही अच्छी और इस्लाही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।